Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. So, welcome back to my YouTube channel, Talim for Everyone. New Syllabus Mathematics Book 1, 7th edition by Misbah Sajid. So, today we are going to start chapter number 12, Geometrical Construction from Book 1. And the agenda for today's lecture is Introduction to Geometrical Constructions and Perpendicular Bisectors and Angle Bisectors. Okay, so let's move on. Geometrical Construction, Introduction to Geometrical Construction, section 12.1. So geometrical construction is the process of drawing a geometrical figure using different geometrical instruments, for example, a compass, a protractor, and a ruler. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करने का विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं? कंपास जिसको हम प्रकार कहते हैं फॉर एग्जांपल, प्रोट्रैक्टर डी जिसको कभी कहते हैं, रूलर, स्केल। ओके, सो दिस इज अ रूलर, दिस इज अ प्रोट्रैक्टर डी एंड दिस इज अ कंपास। Uses देख लेते हैं इन सबके। So ruler, a ruler is used to draw line segment and measure their lengths. Protractor basically D जिसको हम कहते हैं, it is used to measure angles and draw angles. And a compass is used to draw arcs, circles, and mark of equal lengths. Okay, so it's all about what is geometrical constructions. Here some useful tips for the construction of geometrical figures. So first we need to use a sharp pencil so that points and lines can be drawn finely and clearly. When making an intersection with a line or an arc, ensure that angle of intersection does not differ greatly from 90 degree if possible. एक तो पहली चीज ये कि हमने कोई भी पॉइंट या लाइन जो भी ड्रॉ करनी है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमने शार्प पेंसिल यूज करनी है। ओके, इसके अलावा ये कि किसी भी लाइन या आर्क को अगर हमने बाइसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है, आर्क लगानी है उसके ऊपर, तो मेक श्योर कि जो हम आर्क लगा रहे हैं वो इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, नॉट ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ आर्क्स हैं विच सम ऑफ two of them are good and two of them are not good. So let's see. Like this one, this is a very good arc. Okay, and this one is not a good arc. This one is good arc or this one is not. ठीक है, मतलब कि लाइन के ऊपर एग्जैक्ट आर्क लगी हुई है, यहाँ पे लाइन के ऊपर नहीं लगी हुई, थोड़ी सी आउटसाइड द लाइन है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। सो दीज आर दी टिप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो perpendicular bisector, page number 299, and the figure 12.5, it is taken from the page number 299. What is perpendicular bisector? तो वो देख लेते हैं। And figure 12.5, M is the midpoint of the line segment AB. एक midpoint ले लिया है M, एक line AB पे मैं यहाँ पे साथ साथ बता भी देती हूँ। ये line AB ली और इसी के ऊपर एक midpoint ले लिया मैंने M। ठीक है, now एज द लाइन एक्स वाई, एक लाइन है, एक और लाइन है एक्स वाई, अगर वो इस लाइन के ऊपर से पास करेगी, ए बी के ऊपर से, एम के ऊपर से पास होती हुई ए बी को कट करेगी लाइक दिस, सो हम ये कह सकते हैं एक्स वाई इज सेट टू बाइसेक्ट ए बी। मीन्स के एक्स वाई ने क्या किया, ए बी को कट कर दिया। एक्स मीन्स एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटू टू इक्वल parts. So xy is also perpendicular to AB. इस तरीके से हम ये देखें तो xy जो है AB के perpendicular भी है because 90 degree angle बन रहा है. So therefore we can say that xy is known as the perpendicular bisector of AB. I hope so ये समझ में आया होगा आपको। Any point on the इसके अलावा एक statement है, any point on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from the two ends of the line segment. मीन्स कि कोई भी हम पॉइंट ले ले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, वो दोनों एंड कोई भी पॉइंट में अगर ले लूं, ठीक है, यहाँ पे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे
वाली जो लाइन है, कोई भी पॉइंट ले लूं, वो दोनों एंड पॉइंट पे, जो हमारी लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड पॉइंट के जो है उसका, और जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लिया है उसका डिस्टेंस जो है सेम होगा। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ही सेम डिस्टेंस है। फाइन, सो नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर. इट इज on page number 300, same book 1. So what is angle bisector? Bisect का मतलब समझ में सबको आ ही रहा होगा कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, bisect. So in this is figure 12.7. In figure 12.7, the ray AX divides angle BAC into two equal angles. पहले हमने लाइन को डिवाइड किया था, अब एंगल को डिवाइड कर रहे हैं. ये जो है एक एंगल है, ठीक है, इसके मिड में से हमने एक लाइन पास की, रे ए एक्स, जो कि इस कंप्लीट पूरे एंगल को बी ए सी को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है. एंगल 1 फॉर एग्जांपल और एंगल 2. एंगल 2 का नाम फॉर एग्जांपल बी ए एक्स है एंड एंगल 1 का नाम सी ए एक्स है. सी ए एक्स बेसिकली एंगल तो ये है, लेकिन सी ए एक्स या बी ए एक्स उन एंगल की पूरी एक कंप्लीट डायरेक्शन बता रहा है. हेंस नाउ वी कैन से दैट ए एक्स इज नोन एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. जो कंप्लीट एंगल है वो बी ए सी है. एक इंफॉर्मेशन है that is taken from the same page number 300. An angle bisector can also be constructed by using a ruler and a protector D, और जो है रूलर के थ्रू भी जो है हम बना सकते हैं. okay, and any point on the angle bisector of an angle is equidistant from the two sides of the angle. इसका क्या मतलब है? मैं कोई भी पॉइंट ले लूं यहाँ पे ए एक्स पे, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन पे ज्वाइन करूं और इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन पे ज्वाइन करूं तो उनका डिस्टेंस जो है वो सेम ही होगा. ठीक है, सो ये बताया गया है. सो आई होप सो कि what is geometrical construction, what is perpendicular bisector, what is angle bisector, and some important tip for the construction of geometrical figure आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह. In next lecture we will start our exercise 12A, in which we will deeply cover how to draw a perpendicular bisector and angle bisector. So I hope so कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से. So thank you for watching and don't forget to subscribe my channel, Talim for Everyone. Link is here.